Hello dear students, good morning. Students, this is the fourth class of this topic, water. We have discussed about the continuous movement of the ocean, and that was wave. Do you remember this? Tides and currents. I hope you all have remembered about all these three movement of the oceans. So students, tell me, have you ever thrown a ball or a stone on water? I hope you all have done this. Wherever we see pond and lake, something like this, we always throw something in it, isn't it? Yes. So if you throw a ball in ocean, what will happen? Can you imagine what will happen? Yes, let me tell you. The ball will come again on the beach. How? Because of the waves of the oceans. Okay? See, I have told you what are the waves. What are waves? Yes, the lines comes on the ocean surface. है ना? ओशन सरफेस आपने देखा होगा, वाटर क्या होता है, लाइन बाय लाइन एक के आगे एक जो है पुश करता रहता है ना, वो आगे आता है एंड अगेन वो वापस चला जाता है. दैट आर वेव्स, है ना. तो इफ यू विल थ्रो अ बॉल ऑन दिस wave or in ocean water, that ball will come on the beach with the help of waves. Okay? So yes, tell me, who will tell me how these waves form? How these waves form? Yes, very nice. Due to the help of winds, because of the winds. Winds blow from the surface of the ocean and it push the water of ocean. Winds जब चलती हैं, you have seen that it pushed the things, whatever comes in their path. जो भी इनके रास्ते में जो भी चीज़ें आती हैं, ये क्या करती हैं, ये उनको पुश कर देती हैं. तो जब सरफेस वाटर, ओशन वाटर जब इनके टच में आता है, तो विंड्स इनको क्या करती है, पुश कर देती हैं. ठीक है, तो ये पुश होकर के क्या आते हैं, ऐसे मूव ऑन हो जाते हैं एंड इट विल मेक वेव्स. क्या करते हैं, ये वेव्स बना देते हैं, है ना. सी, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज, आप जब देखेंगे यू विल वेरी excited, you will feel very excited. Okay, so let's talk about tsunami. Have you ever listened this? I hope सभी ने सुना होगा tsunami, है ना. So students, tell me, what is tsunami? Yes, very nice, very nice. Yes, tsunami is a Japanese word in which T is silence, isn't it? T is silence in tsunami. T silent होता है and we pronounce it tsunami. Okay? And in Japanese, tsunami means harbor waves. Okay? Harbor waves means as the harbor get destroyed whenever is tsunami. Means जहाँ पर भी tsunami आती है वहाँ पर harbor. Harbor means the corner of the ओशन और बीच. ठीक है, तो वो जो ओशन का किनारा होता है जहाँ पर बीच स्टार्ट होता है, उसको हम हार्बर भी कहते हैं. एंड दैट हार्बर इफेक्ट ड्यू टू द सडन वेव्स कम्स एंड वी कॉल्ड इट सुनामी. सो देयर आर सम कॉजेज ऑफ सुनामी. हाउ सुनामी ओरिजिनेट? How tsunami originate? Who will tell me? Who will tell me? Yes, very good.
See, how tsunami will come? When the sudden movement occurs in the earth crust caused tsunami. Okay, students? When sudden tremor or movement caused on the earth crust caused tsunami. ठीक है, अब सुनामी कैसे आता है? आप कहेंगे वो तो भूकंप होता है जब सडन ट्रिमर होता है और सडन मूवमेंट होता है अर्थ क्रस्ट में, दैट इज कॉल्ड अर्थक्वेक. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुनामी एंड अर्थक्वेक? सी, जब लैंड एरिया पे, लैंड सरफेस पे कभी भी ट्रिमर होता है, सडन ट्रिमर होता है, तो वी कॉल इट व्हाट? अर्थक्वेक. ठीक है, अर्थक्वेक. बट suppose this is the sea water or ocean water. Okay, this is the sea water or ocean water, and below the ocean water there is also land area. ऐसा है, ऐसा तो नहीं है ना कि ओशन वाटर के नीचे कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी ही पानी है. एक उसका नीचे बेस लेवल होता है और उस बेस लेवल में क्या होता है? लैंड सरफेस होता है. ठीक है, एंड सम माउंटेन्स ऑल्सो. आप देखेंगे वहाँ पर क्या होते हैं? बहुत सारे लैंडफॉर्म्स होते हैं अंडर सी वाटर. तो वहाँ पे लैंड सरफेस होता है, माउंटेन्स भी होते हैं लाइक दिस. तो यहाँ पर जब इन अर्थ क्रस्ट पे यहाँ पर जब मूवमेंट होते हैं, सडन मूवमेंट होते हैं, तो विच दिस इफेक्ट द लेवल ऑफ वाटर, है ना. इससे क्या होगा? जब यहाँ भूकंप आएगा, यहाँ पर ट्रबल होगा, तो क्या होगा कि वाटर का लेवल भी इफेक्ट होगा एंड इट विल कॉज सुनामी, है ना. सुनामी किसको कहेंगे? द हाई वेव्स. जब हाई वेव्स आती हैं, सडन वेव्स आती हैं, तो ये क्या करती हैं? सुनामी बन जाती हैं एंड दिस अफेक्ट द हार्बर ऑफ द कॉन्टिनेंट और लैंड एरिया. ठीक है, तो ये हार्बर को क्या करती है? इफेक्ट करती हैं दिस सुनामी. ओके, I hope you'll get this. See, so during a storm, suppose this is the sea level or this is the ocean water, and suddenly here a storm came. यहाँ पर क्या है? एक storm आया, तूफान आया. ठीक है, so the wind blowing at very high speed. This wind, ये wind आ रही है और which is very high speeded wind, and this will affect to whom? To sea water. ये sea water को क्या करेंगे? ये affect करेंगे. How it will affect? This wind will push the water of sea, है ना. sea water को क्या करेंगी? ये push करेंगी and फिर क्या होंगे उसमें? waves will be formed. Waves will formed due to the force of winds. ठीक है, so an earthquake, a volcanic eruption or underwater landslide. See, earthquake, volcanic eruption or underwater landslide means ये सी लेवल है या वाटर है, इसके नीचे भी तो सरफेस है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि there is a base level also. So in the base level landslide can be happen. लैंडस्लाइड हो सकती है ना. कोई यहाँ पे मान लीजिए कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर अचानक से क्या हो गया? ट्रेमर हुआ और उसकी वजह से लैंडस्लाइड हो गया. सो दीज आर द कॉज ऑफ सुनामी. ये क्या बन सकते हैं? सुनामी के कॉज बन सकते हैं. एज अ रिजल्ट अ ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी. ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होगा? ड्यू टू द स्टॉर्म, due to the earthquake, landslide, tsunami can be occurred. Tsunami can be come. ठीक है, tsunami आ सकती है. So that may be high at 15 meter. The waves can be near about 15 meter. Can you imagine? 15 meter. What is the height of? What will be the height of waves? है ना, ऐसे लंबी लंबी वेव्स बनेंगी. दैट इज कॉल्ड सुनामी. दैट इज वेरी डेंजरस. कैन यू टेल मी द मोस्ट
affected area of the world with tsunami? Most of the tsunami कहाँ से आती है, कहाँ पर आती है? Yes, this is your homework. You have to search it. Okay. See. Next, the largest tsunami ever measured was 150 meter high. Horrible. This is horrible, isn't it? So 150 meter of height. This is very dangerous. है ना? कि 150 मीटर हाइट की अगर वेव्स बन रही हैं, तो ये बहुत ही हॉरिबल, बहुत ही डरावना एक सीन है जो कि हम देखना बिल्कुल नहीं चाहेंगे, है ना? आप देखना चाहेंगे? Nobody want to see. See, okay. These waves travel at a speed of more than 700 kilometer. See, these waves 700 kilometer. ये जो वेव्स हैं ये 150 मीटर अबव तक जा सकती हैं और गई थी। जो लार्जेस्ट सुनामी आई थी उसकी हाइट क्या थी वेव्स की? 150 मीटर थी। एंड व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द सुनामी? 700 किलोमीटर। 700 किलोमीटर की स्पीड से अगर वेव्स आएंगी, सो आई कांट इमेजिन व्हाट विल हैपन। ओके, सी next beta, these waves travel at a speed of more than 700 kilometer per hour. The tsunami 2004 caused widespread damage in the coastal areas of India. Do you remember this? In 2004 India faced a tsunami. In 2004 India faced a tsunami in our coastal areas, and which affect our coastal areas very badly. And Indira Point, what is the Indira Point? Indira Point is the most southern point of our mainland. Okay, so ये हमारे इंडिया का क्या है? सबसे सदर्न पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, और ये इफेक्ट हुआ किससे? सुनामी से, विच वॉज कम इन 2004. एंड इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी. इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार में है। और ये 2004 में जब सुनामी आई थी तो हमारा जो इंदिरा पॉइंट जो कि सदर्न पॉइंट है वो क्या हो गया? सबमर्ज हो गया. सबमर्ज मीन्स कवर्ड बाय द वाटर, है ना? वो पानी के अंदर चला गया, तो दैट इज सबमर्ज्ड. तो ये सुनामी क्या होती है? सुनामी बहुत डेंजरस होते हैं और ये कोस्टल एरिया को, हार्बर्स को बहुत इफेक्ट करते हैं. Tsunami, the Earth's pandemonium. Tsunami or the harbor waves struck havoc in the Indian Ocean on the 26 December 2004. See, tsunami क्या करता है? हिट करता है. ठीक है, to hit something or somebody. Struck means to hit somebody or something. That is the meaning of struck. And havoc means a situation of damage. A situation of damage, that is havoc. तो सुनामी क्या करता है, या जो हार्बर वेव्स होती हैं वो क्या करती हैं? पुश करती है. टू पुश समबडी. ठीक है, आप किसको पुश कर रही हैं? ठीक है, तो वो बीच पे जो भी चीज़ें होती हैं, लाइक वेजिटेशन है, सेटलमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको क्या करती हैं? पुश करती हैं और उसे डैमेज कर देती हैं. इन द इंडियन ओशन ऑन द 26 December 2004, and this was happened on 26 December 2004. कहाँ पर हुआ? इंडियन ओशन में हुआ. And the waves was the result of the earthquake. As I have told, the causes of tsunami. What are the causes of tsunami? Yes, storm. When the storm will come, or volcanic eruption will happen, earthquake will happen, underwater landslide will happen, then tsunami will occur. ठीक है, तब tsunami आती है. And this was happened in 2006
sorry, 26 December 2004 in Indian Ocean due to the earthquake that had in its epicenter close to the western boundary of Sumatra. Where is Sumatra? Sumatra is located near Indonesia. Okay, so near Indonesia was the epicenter of this earthquake, which was happened in 26 December 2004 in Indian Ocean. Have you getting this point? Are you getting, students? See, 26 दिसंबर 2004 में इंडियन ओशन में एक अर्थक्वेक आया नियर सुमात्रा. ठीक है, सुमात्रा पे क्या आया? अर्थक्वेक आया एंड दिस इफेक्ट द एरिया ऑफ नियर बाई सुमात्रा एंड कॉज्ड सुनामी एंड विच damaged or havoc the area of near about continents. ठीक है, जो उसके आसपास के जो कॉन्टिनेंट्स थे उनके एरियाज को इस सुनामी ने इफेक्ट किया एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक वाज 9.0 ऑन द रिक्टर स्केल. व्हाट इज रिक्टर स्केल बेटा? somebody have to tell me. Okay, let me tell you. Richter scale is a unit of measuring earthquake. ठीक है, earthquake की स्पीड को नापने के लिए रिक्टर स्केल को हम यूज करते हैं एंड द स्पीड ऑफ दिस earthquake which was occurred in 26 December 2004 was 9.0. ठीक है, दिस वॉज वेरी टेरिबल. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है. ये जो स्पीड होती है अर्थक्वेक की वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है. एंड ये अर्थक्वेक आया था कब? 26 दिसंबर 2004 को नियर सुमात्रा विच इज़ नियर इंडोनेशिया एंड इन इंडियन ओशन. ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट. एज द इंडियन प्लेट went under the Burma plate. जब इंडियन प्लेट बर्मा प्लेट के अंडर आई, there was a sudden movement of the sea floor. फिर क्या हुआ कि एक सडन मूवमेंट होता है कहाँ पर? सी फ्लोर पर. ठीक है, दिस इज द सी फ्लोर. तो सी फ्लोर पे क्या हुआ? एक सडन मूवमेंट हुआ एंड कॉजिंग द अर्थक्वेक. किसकी वजह से हुआ? अर्थक्वेक की वजह से हुआ. एंड द ओशन फ्लोर was displaced by about 10 to 20 मीटर. ओशन फ्लोर क्या हुआ? डिस्प्लेस हो गया. 10 से 20 मीटर तक क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया, है ना. बिल्कुल अचानक से. कभी आपने हैव यू एवर थ्रोन अ स्टोन इन पॉन्ड और एनी वाटर बॉडी? आपने कभी किसी पानी में पत्थर फेंका है? आपने देखा होगा अचानक से क्या होती है? बहुत सारी वेव्स बन जाती हैं, है ना. आप अगर कभी पॉन्ड में पत्थर फेंकेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पर बहुत सारी ऐसे करके वेव्स बन जाती हैं. तो सेम कंडीशन होती है अर्थक्वेक में भी, है ना. अचानक से जहाँ पर भी ट्रेमर फील होगा, जहाँ पर अचानक से मूवमेंट फील होगी, वहाँ से वाटर में क्या होंगी? वेव्स बन जाएंगी, है ना. और इसी की वजह से क्या आ जाते हैं? सुनामी आ जाते हैं. ठीक है. Students, we will stop here this topic and I have given you homework that you have to find out most tsunami affected area of the world. I will ask you in the next class. Thank you.